بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو پی ٹیٹ سن 2026 کے لیے ہم نے اردو کی پہلی میراتھن کلاس آپ لوگوں کو دستیاب کرا دی ہے، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہماری وہ کلاس نہیں دیکھی ہے تو لنک میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ہماری دوسری میراتھن کلاس میں ٹیٹ لیول کے الگ الگ امتحانوں میں پوچھے گئے اہم سوالوں کو ڈسکس کریں گے۔ سوالوں سے متعلق کچھ اہم جانکاریاں بھی آپ کو دیں گے جو کہ آپ کے امتحان میں بہت زیادہ کارآمد ہوں گی۔ تو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ غور سے سنیے گا بھی، کیونکہ میں بول کے بہت کچھ بتانے والا ہوں۔ کوشچن نمبر 91 سے شروع ہو رہا ہے کہ رجز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو رجز یہ مرثیہ کا جز ہے۔ مرثیہ یہ لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں رونا، اہو بکا کرنا۔ تو مرثیہ کا 8 جز ہے۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کس نے متعین کیے؟ میر ضمیر نے۔ اور جو 8 اجزاء ترکیبی انہوں نے بتایا وہ کیا تھے؟ پہلا چہرہ، اس کے بعد سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ یہ 8 اجزاء ترکیبی ہیں، ان میں سے ایک رجز بھی ہے۔ تو یہ کس کا جز ہو گیا؟ مرثیہ کا۔ عدو کا متضاد کیا ہے؟ عدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور دشمن کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ دوست ہو جائے گا۔ ناسخ کا پورا نام شیخ امام بخش ناسخ ان کا پورا نام ہے۔ یہ ہم عصر تھے انشاءاللہ خواہ انشاء کے، ان سے ان کی ادبی چشمک بھی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اگلے سوال پہ۔ پوچھا جا رہا ہے کہ تشبیب کس صنف سخن کا جز ہے؟ تو تشبیب یہ قصیدہ کا جز ہے۔ قصیدہ کے 5 اجزاء ترکیبی ہیں: تشبیب، گریز، مدح، دعا اور مدعا۔ مدعا کو حسن طلب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 5 اجزاء ترکیبی قصیدے کے ہیں۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ خدائے سخن ان کو کہا جاتا ہے۔ نا خدائے سخن ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم اور قنوتی شاعر بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے 1722 عیسوی میں۔ دیکھیے، میر تقی میر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ان کے کل دیوان کتنے ہیں؟ 7 ہیں، جن میں 6 اردو کے ہیں اور 1 فارسی کا ہے۔ تو کل ان کے دیوان پوچھتا ہے تو یاد رکھیے گا 7 ہیں۔ میر تقی میر نے اردو شاعروں کا تذکرہ لکھا تھا فارسی زبان میں، جس کا نام تھا نکات الشعراء۔ پوچھا جاتا ہے نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی میر کی ہے۔ اردو شاعروں کا تذکرہ ہے، فارسی زبان میں عیسوی میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اپنی خود نوشت بھی لکھی جس کا نام ہے ذکر میر۔ ذکر میر کا اردو میں ترجمہ کیا تھا نثار احمد فاروقی نے۔ میر تقی میر نے فیض میر کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی تھی، جو اپنے بیٹے کو نصیحت دینے کے لیے لکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پناہ گاہ یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ کس کا ہے؟ رتن سنگھ کا ہے۔ کوشچن نمبر 97، فورٹ ولیم کالج کہاں واقع ہے؟ کئی بار آ چکا یہ سوال۔ کلکتہ میں سن 1800 عیسوی میں لارڈ ویلیزلی کے حکم پہ یہ قائم ہوا۔ دیکھیے، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جب فورٹ ولیم کالج بنا تو اس وقت کون تھا گورنر جنرل؟ تو لارڈ ویلیزلی تھا۔ ٹھیک ہے، 4 مئی کو فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تھا۔ میر امن کی کتاب ان میں سے کون سی ہے؟ دیکھو، گلشن ہند تو لطف کی ہے، مرزا علی لطف کی، اور مذہب عشق نہال چند لاہوری کی ہے، آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی ہے، اور میر شیر علی افسوس کی کتاب کا نام بھی آرائش محفل ہے۔ اب بچی گنج خوبی۔ تو جی ہاں، گنج خوبی جو ہے یہ میر امن کی کتاب ہے۔ واعظ حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء کا یہ ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میر امن نے باغ و بہار کے علاوہ
गंज खूबी के नाम से भी किताब लिखी। सिंध में उर्दू के आगाज़ का नज़रिया किसने पेश किया? तो सैयद सुलेमान नदवी ने नुकूश सुलेमानी के नाम से किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि चूँकि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए थे, इसलिए करीने क़ियास ये है कि जिसे आज हम उर्दू कहते हैं उसका हैवला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। अभी जो मैंने कौल बोला ये सुलेमान नदवी का है, इसको स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछ सकता है। बाकी ऑप्शन देखो, मसूद हुसैन खां का नज़रिया ये है कि दिल्ली और गिरदोनवाह में उर्दू पैदा हुई। नसीरुद्दीन हाशमी का मानना ये है कि दक्कन में उर्दू पैदा हुई, और महमूद शिरानी ने उर्दू की पैदाइश पंजाब को करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की है? नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहते हैं, मिली जुली तहज़ीब और गंगा जमनी तहज़ीब का शायर कहते हैं। इन्होंने होली और दिवाली पे भी नज़में लिखी और शब बारात और ईद पर भी नज़में लिखी। आदमी नामा, रोटी नामा जैसी नज़में लिखी। इनकी एक नज़्म है मुफलिसी। नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी के ऊपर एक उर्दू में ड्रामा लिखा गया जिसका नाम था आगरा बाज़ार। ड्रामा आगरा बाज़ार किसने लिखा पूछा जाता है? हबीब तनवीर का ड्रामा है ड्रामा आगरा बाज़ार। क्वेश्चन नंबर 101, लखनऊ का दबिस्तान शायरी ये किताब किसकी है? तो ये किताब अबुल्लैस सिद्दीकी की है। इसी से मिलती जुलती एक किताब है दिल्ली का दबिस्तान शायरी, वो किताब नूरुल हसन हाशमी की है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली का दबिस्तान शायरी नूरुल हसन हाशमी की है और लखनऊ का दबिस्तान शायरी अबुल्लैस सिद्दीकी की है। क्वेश्चन नंबर 102, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए थे? इलाहाबाद में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 103, तलखियाँ ये शेरी मजमूआ है तलखियाँ किसका है? साहिर लुधियानवी का है। यहाँ पे एक कौल है कि दिल्ली ज़बान दिल्ली व पैरामंश उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है और हज़रत दिल्ली इसका हकीकी मौलिदो मंशा है। ये कौल किसका है? तो मसूद हुसैन खां का है। तारीख़ अदब उर्दू मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू इनकी किताब है, तो उसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि दिल्ली और गिरदोनवाह में उर्दू पैदा हुई। ठीक है, उसी किताब में ये कौल उनका है मसूद हुसैन खां का। उर्दू किस ख़ानदान अलसिना से ताल्लुक़ रखती है? उर्दू का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? तो हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान से है। क्वेश्चन नंबर 106, ज़बानों का घर ये मज़मून है किसका है? एहतशाम हुसैन का है। मैंने आपसे नज़ीर अकबर आबादी से मुतल्लिक जो सवाल आया था उस दौरान बताया था कि हबीब तनवीर ने एक ड्रामा लिखा था नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी के ऊपर। ड्रामे का नाम क्या था? आगरा बाज़ार। आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का है। दिल्ली कॉलेज दर्ज झेल में से किसने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की? तो नज़ीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की और उर्दू के पहले नावल निगार ये कहलाते हैं। मीरतुल उरूस के नाम से इन्होंने पहला नावल लिखा था। मीरतुल उरूस के अलावा नज़ीर अहमद ने 6 नावल लिखे, यानी टोटल 7 नावल इनके हैं। मीरतुल उरूस के अलावा तौबतुन नसू, बनातुन नास, इब्नुल वक्त और फसाने मुब्तला अय्यामा वगैरह, रोयाए सादका वगैरह नज़ीर अहमद के नावल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तज़किरा निकातुश शोरा किसकी तसनीफ़ है? मैंने बताया था कि मीर तकी मीर के तज़किरे का नाम है निकातुश शोरा। ठीक है, 1752 ईस्वी में 103 उर्दू शायरों का इसमें ज़िक्र है। 1752 ईस्वी में ये लिखा गया। ठीक है, 52 ही बोला था ना पिछली टाइम, कहीं 82 तो नहीं बोला था। 1752 याद रखिएगा।
पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। कहा जाता है कि जब नसीम ने अपनी मसनवी गुलजार नसीम लिखी थी तो अपने उस्ताद आतिश के पास गए थे और उनसे जचवाया, तो आतिश ने कहा कि ये मसनवी इतनी लंबी है कि सिर्फ 2 ही लोग पढ़ेंगे, एक मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, और एक तुम पढ़ोगे क्योंकि तुमने इसको लिखा है, तुमने इसको लिखा है, बाकी कौन पढ़ेगा? इतनी फुर्सत किसको है कि इतनी लंबी मसनवी पढ़े, इसको मुख्तसर करो, छोटी करो। तो फिर बाद में आतिश ने इस मसनवी को मुख्तसर किया और यही इख्तिसार मसनवी गुलजार नसीम की सबसे बड़ी खसूसियत बन के उभरी। ठीक है। इकबाल कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में पैदा हुए। कब पैदा हुए? कमेंट में आप लोग बताओ। अगला सवाल है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबा का माने होता है 4 और इसमें 4 मिसरे होते हैं। 2 बैती भी रुबाई को कहा जाता है। रुबाई का पुराना नाम कल भी बताया था, तराना है। इसके लिए 24 औज़ान मुख्तस हैं और ये बहरे हजज में कही जाती है। हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक़ किस इदारे से है? फोर्ट विलियम कॉलेज। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में जिस मुसन्निफ़ ने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी वो हैदर बख्श हैदरी ही थे। लगभग 10 किताबें लिखी। तोता कहानी, किस्से मेहरुमा, आराइश महफिल, गुले मग़फ़िरत जैसी किताबें हैदर बख्श हैदरी की हैं। क्वेश्चन नंबर 120, ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसी माने रखते हों, एक जैसे मानी रखते हों, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम मुतरादिफ़ कहते हैं, हम माना। ठीक है, मुतरादिफ़ अल्फाज। जैसे मैं कहूँ तलाश व जुस्तजू, तो तलाश और जुस्तजू दोनों मुतरादिफ़ अल्फाज हैं। मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई? तो गालिब की पैदाइश के 12-13 साल बाद। जब गालिब की उम्र 12 या 13 साल थी, 1897 में गालिब पैदा हुए ना, 1797 में गालिब पैदा हुए और उनसे 13 साल बाद, उनकी पैदाइश के 13 साल बाद मीर तकी मीर की वफ़ात हो गई। रूमानी शायर किसे कहते हैं? तो रूमानी शायर कहते हैं अख्तर शीरानी को। इस्माइल मेरठी को क्या कहते हैं? बच्चों का शायर कहते हैं। ठीक है, बच्चों का शायर किसको कहते हैं? इस्माइल मेरठी को कहते हैं। 124 नंबर के सवाल पे आते हैं। ज़िंदगी के मोड़ पर ये अफसानवी मजमुआ किसका है? कृष्णचंद्र का है। अगला सवाल, लफ्ज़ गम्माज़ के माने क्या हैं? लफ्ज़ गम्माज़ के माने हैं इशारा करने वाला। ठीक है, जैसे एक शेर है ना, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज, देखना मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज़ देखना, यानी इशारा करने वाला गम्माज़ के माने हैं। सही लफ्ज़ का इमला, वारिस लफ्ज़ का सही इमला क्या होगा? चौथा वाला ऑप्शन होगा, वारिस। अली वारिस कहते हैं ना लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 127, मीरानीस कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में इनकी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा ज़रूर गुज़रा, लेकिन ये लखनऊ में नहीं पैदा हुए। लखनऊ ऑप्शन में है भी नहीं, फैज़ाबाद में ये पैदा हुए थे। जो हरूफ एक दूसरे से नहीं जुड़ते उनको हम क्या कहते हैं? बताइए। जो सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, मुफरद होते हैं, वो एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं, तो उनको हरूफ मुफरद कहते हैं। नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? तो नज़ीर अकबर आबादी, हालांकि इनके नाम के आगे अकबराबाद लगा हुआ है, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, जिस नज़्म के हर बंद में
5 5 मिसरे हों उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम मुखम्मस कहते हैं। जो नज़ीर अकबर आबादी है ना, उनकी ज़्यादातर नज़में 5 मिसरों पे ही हैं, यानी कि मुखम्मस हैं। जैसे आदमी नामा मुखम्मस है। तनवीन लफ्ज़ का इस्तेमाल किस हर्फ पर होता है? जैसे मैं लिखूं उमूमन, तो आखिरी वाले लफ्ज़ पर मैंने यहाँ पे तनवीन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, तो लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर तनवीन का इस्तेमाल होता है। सी पारे दिल, ये इंशाइयों का मजमूआ है। किसके? ख्वाजा हसन निज़ामी के। मीर तकी, मीर की खुद नविश्त मैंने अभी बताया था, ज़िक्र मीर। इसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? निसार अहमद फ़ारूक़ी ने। क्वेश्चन नंबर 134, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी? तो प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए और 1936 में इनका इंतकाल हुआ। ऑप्शन 2 दुरुस्त है। अनादिल किस लफ्ज़ की जमा है? तो अंदलीब की जमा है अनादिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, गुलिस्तां का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? किस नाम से किया था ये पूछा है, तो मैं ये भी बता दूंगा किसने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर शेर अली अफसोस ने शेख सादी की किताब गुलिस्तां का उर्दू में तर्जुमा बाग़ उर्दू के नाम से किया था। ऊद हिंदी क्या है? तो ऊद हिंदी खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है? मिर्ज़ा गालिब के। ऊद हिंदी के अलावा उर्दू मुअल्ला भी गालिब के खतूत का मजमूआ है। जलवत का मुतज़ाद क्या होगा? खलवत हो जाएगा। ऑप्शन 3 दुरुस्त है। हरूफ तहज्जी में बे नुक्ते वाले हरूफ की तादाद पूछ रहा है। थोड़ा सा मेरा मोबाइल की स्क्रीन गड़बड़ है, 1 सेकंड इंतज़ार करिएगा, अपने से टच हो रही है इधर उधर। चलो, तो हरूफ तहज्जी में जो बे नुक्ते वाले हरूफ हैं उनकी तादाद 18 है। ख़त नस्ताली की ईजाद कहाँ पे हुई थी? ईरान पे हुई थी, ईरान से हुई थी। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से तो बराबर हों लेकिन काफ़िया ना हो तो उसको हम नज़्म मुअर्रा कहते हैं। ठीक है। नज़्म मुअर्रा जिसके जो मिसरे होंगे वो बराबर होंगे वज़न के एतबार से, लेकिन उसमें काफ़िया नहीं होगा तो नज़्म मुअर्रा होगा। और अगर मिसरे छोटे बड़े हो जाएं तो वो आज़ाद नज़्म हो जाती है। ठीक है। नज़्म मुअर्रा को अंग्रेज़ी में ब्लैंक वर्स कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, शाद अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई? तो सन 1927 ईस्वी में शाद अज़ीमाबादी, जो दबिस्तान अज़ीमाबाद की आबरू कहलाते हैं, इंतकाल कर गए। नग़्मे इल्हाम के नाम से इनकी किताब काफ़ी मशहूर है। शाद की कहानी शाद की ज़बान इनकी खुद नविश्त है, जिसको पढ़ के काज़ी अब्दुल वदूद ने इनको झूठों का बादशाह करार दिया था। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ये दूसरा मिसरा होगा। किसका शेर है? ज़ौक़ का शेर है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिनको खाकानी हिंद भी कहा जाता है, मशहूर कसीदा निगार हैं। सिहरुल बयान किसकी है? मीर हसन की मसनवी है। खुल्द का मुतरादिफ क्या होगा? खुल्द के माने क्या होता है? खुल्द जो है जन्नत को कहते हैं। खुल्द बरी आपने नाम सुना होगा, और फिरदौस बरी भी नाम सुना होगा। तो खुल्द और फिरदौस ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। अनारकली ये क्या है? ड्रामा। किसका? इम्तियाज़ अली ताज का है। सोज़े वतन में कितने अफसाने हैं? टोटल 5 अफसाने हैं। मुंशी प्रेमचंद के पहले अफसानों का मजमूआ है। ठीक है। और इसमें 5 अफसाने हो गए। 1908 में ये शाये हुआ। इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। ठीक है। अंग्रेज़ों ने क्यों ज़ब्त किया था? क्योंकि इसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात थे। इसका जो पहला अफसाना है वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उर्दू का भी पहला अफसाना है। क्वेश्चन नंबर
148। पहाड़ और गिलहरी किस नज़्म निगार ने लिखी? तो ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है पहाड़ और गिलहरी। मंटो कब पैदा हुए? तो मंटो 1912 ईस्वी में पैदा हुए। और लफ्ज़ शजर की जमा क्या होगी? अशजार होगी। अगला सवाल है कि मरसिया का पहला और अव्वलीन हिस्सा क्या कहलाता है? मरसिया के 8 जुज़ हैं। पहला हिस्सा है चेहरा, ठीक है। दूसरा सरापा है, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन, ये 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं। जमउल जमा यानी जमा की जमा कौन नहीं है? देखो, जौहर की जमा जवाहिर होता है और जवाहिर की जमा जवाहिरात हो जाता है, यानी ये जमा का जमा है। ये भी है और अद्वियात भी है। दवा का जमा अद्विया होगा और अद्वियात ये जमा की जमा हो जाएगी। और इखराज ऑलरेडी जमा है, उसकी जमा बना गई इखराजात, लेकिन हक की जमा हकायक होगी, ये जमा की जमा नहीं है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा दुरुस्त होगा। उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, कई बार सवाल आया है। महमूद शिरानी का ये नज़रिया है। फोर्ट विलियम कॉलेज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कब हुआ? तो डेट सहित मैंने बताया है आपको, 4 मई सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पे इसका इफ्तिताह हुआ। मीर अमन ने बागो बहार किस सन में मुकम्मल की? 1803 में। किसकी फरमाइश पर लिखी थी? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। मुबालगा और गुलू कसीदा के किस जुज़ की शान है? तो मदह में मुबालगा और गुलू होता है। अगला सवाल है कि मुंदरजा झेल में से नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म कौन सी नहीं है? तो देखिए, गौर से सुनिएगा। आदमी नामा, बंजारा नामा और मुफलिसी, ये तीनों नज़ीर अकबर आबादी की हैं, लेकिन पहाड़ और गिलहरी ये नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगला सवाल कि तसादुम और कशमकश का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ड्रामा से है। उर्दू के पहले ड्रामा निगार किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, उर्दू के पहले ड्रामा निगार मसूद हसन रिजवी अदीब के मुताबिक वाजिद अली शाह हैं। उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार अमानत लखनवी हैं, जिन्होंने इंद्र सभा लिखी थी। अगला सवाल है कि खाकानी हिंद किस शायर का खिताब है? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब मिला। किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा जा रहा है कि गुल बकावली का किस्सा किस मसनवी में बयान किया गया है? तो मसनवी गुलजार नसीम जो पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखी थी, वो किस्से गुल बकावली पे ही लिखी थी। याद रखिए, असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था और बाद में इसी किस्से को फोर्ट विलियम कॉलेज में निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से नस्र में लिखा और फिर 1838 ईस्वी में इसी किस्से को मसनवी के लिबास में ढाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 95 अखलाक हिंदी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता किस मुसन्निफ़ से मंसूब है? फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता 4 मुसन्निफ़ीन के नाम आप देख सकते हैं। मज़हर अली खाविला, हैदर बख्श हैदरी, बहादुर अली हुसैनी और मीर अमन। इनमें से बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ है अखलाक हिंदी। कमरी हरूफ
कौन है? कमरी हरूफ वो हरूफ होते हैं जिनसे पहले अगर अलिफ लाम आए तो वो ज़ाहिर हो। जैसे मैं कहूँ अल कमर, तो ये अलिफ लाम को बोलना पड़ेगा अल कमर। जबकि मैं अगर ये लिख दूँ तो मैं क्या पढ़ूँगा? इसको अल शम्स नहीं पढ़ूँगा, अशम्स पढ़ूँगा। व शम्स व रुहाहा, आपने कुरान में भी पढ़ा होगा। तो जिस हरूफ के पहले अलिफ लाम आए और वो बोला ना जाए तो वो हरूफ शमसी हरूफ होते हैं, और जिन हरूफ से पहले अलिफ लाम आए और वो बोला भी जाए वो कमरी हरूफ होते हैं। ऐन से पहले अलिफ लाम आएगा, बोला जाएगा। गैन से पहले फे, काफ और काफ, इन सब से पहले अगर अलिफ लाम आएगा तो ये बोला जाएगा। लिहाजा ये सब कमरी हरूफ हैं। क्वेश्चन नंबर 97, किस सिन्फ को मुरस्सा नसरी गज़ल कहा जाता है? ज़हन का तरंग किसको कहा जाता है? इंशाइया को कहा जाता है। जॉनसन ने इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा है। लफ्ज़ वाहिद इनमें से कौन सा है? वाहिद की आपको निशानदही करनी है। देखिए, अहकाम ये जमा है हुक्म की, और हुकूक ये भी जमा है हक़ की, एहसानात ये भी जमा है एहसान की, ताजिर ये अपने आप में सिंगुलर है, एक वचन है, वाहिद है। दबिस्तान लखनऊ का वो कौन सा शायर है जिसने उर्दू ज़बान को निखारने और संवारने में अहम रोल अदा किया? तो वो है नासिख। नासिख को अदबी डिक्टेटर भी कहा जाता है। ठीक है, नासिख के अलावा मुसहफ़ी ने भी ज़बान को संवारने का काम किया, लेकिन नासिख का नाम ज़्यादा अहम और मशहूर हुआ। इनको अदबी डिक्टेटर कहा जाता है। अगला सवाल कि शेरुल अजम क्या है? शेरुल अजम ये शिबली नोमानी की किताब है। शेरुल अजम में शिबली ने अपने तनकीदी नज़रियात पेश किए और फ़ारसी शायरी की तारीख़ पर बहस की। ठीक है, चौथी जिल्द में शिबली ने अपने तनकीदी नज़रियात भी पेश किए थे। तो शेरुल अजम क्या है? ये फ़ारसी शायरी की तारीख़ की किताब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगर आप देखें सवालों को, ये ग्रामर से था, ये भी ये जो सवाल था वो ज़बान की तारीख़ से था, और ये सवाल जो लिटरेचर से था ये आपका कवायद से था, यानी कि सनअतों से था। अब आते हैं एक और सवाल आपका ग्रामर से है। वो फ़ेल जिसका काम करने वाला न हो, जैसे कापी लिखी गई, किसने लिखा नहीं मालूम, तो उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पे कलकत्ता में कायम हुआ था। इस कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के सदर जॉन गिलक्रिस्ट थे, जिनकी फरमाइश पर मीर अमन ने बागो बहार लिखा था। मज़हब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने इज़्ज़तुल्लाह बंगाली के किस्से गुल बकावली का तर्जुमा भी फोर्ट विलियम कॉलेज में ही किया था। इसी किस्से को बाद में पंडित दया शंकर नसीम ने गुलज़ार नसीम के नाम से मंजूम पैराए में पेश किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब अक्सर आपसे इम्तिहान में पूछ ली जाती है, तो कौन सी है? बागे उर्दू है। बागे उर्दू किसने लिखी? मीर शेर अली अफसोस ने लिखी, और ये किताब गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा है। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जो मुसन्निफ़ीन हैं उनको आपको ख़ुसूसी तौर से याद रखना है। इनसे मुताल्लिक़ सवाल आता है। सवाल कैसे आएगा? कहेगा कि दर्ज झेल में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में दे देगा मीर अमन,
اس کے بعد حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، اور ایک دے دے گا ماسٹر رام چندر۔ تو جو شروعات کے 3 میں نے نام لیے وہ تو فورٹ ولیم کالج میں شامل ہیں، لیکن جو ماسٹر رام چندر ہیں یہ فورٹ ولیم کالج سے نہیں بلکہ دلی کالج سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے سوال آپ کو آئے گا۔ تو اس طرح سے فورٹ ولیم کالج کے مصنفین کے بارے میں آپ خصوصی طور سے یاد رکھیے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس جملے میں یہ جو لفظ ہے کچھ کیا ہے؟ تو یہ ضمیر تنکیر ہے۔ آپشن 1 درست ہوگا۔ یہاں پہ پیڈاگوجی کا سوال دیکھیے۔ تدریسی عمل کو مؤثر اور دلچسپ بنانے کا کون سا طریقہ زیادہ موزوں ہے؟ ٹیچنگ پروسیس کو افیکٹو اور انٹرسٹنگ بنانے کے لیے کون سا میتھڈ زیادہ اپروپریٹ ہے؟ تو موضوع کی مناسبت سے تدریسی سامان کی فراہمی، یعنی کہ جو ٹاپک آپ پڑھا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ TLM کا یوز کریں، تب آپ کی ٹیچنگ افیکٹو اور انٹرسٹنگ ہوگی۔ تو آپشن A درست ہوگا۔ کوشچن نمبر 69، بادل گرجتا رہا اور بجلی چمکتی رہی، یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ تو یہ جملہ ہے ماضی۔ بادل گرجتا یعنی پہلے گرج چکا ہے، رہا۔ اب یہ جو رہا ہے اس کی وجہ سے کنٹینیوٹی آ گئی ہے، یعنی کہ یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، یعنی ماضی استمراری ہے۔ بادل گرجتا رہا، بجلی چمکتی رہی، تو یہ ماضی استمراری ہے۔ غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعے کا نام غبار خاطر ہے۔ اس میں ٹوٹل 2 درجن یعنی کہ 24 خطوط شامل ہیں، اور یہ خطوط حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے۔ یعنی کہ اگر آپ سے پوچھ لے کہ غبار خاطر کے مکتوب الیہ کون ہیں تو حبیب الرحمن خان شیروانی ہیں۔ اگر آپ سے پوچھ لے کہ یہ خطوط کہاں لکھے گئے تو قلعہ احمد نگر جیل میں لکھے گئے۔ کوشچن نمبر 71، خاموش مطالعے کا اہم مقصد کیا ہے؟ تو سائلنٹ ریڈنگ عبارت کی تفہیم کے لیے کی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 72، زبان سیکھنے میں لینگویج لرننگ میں کون سا عنصر فعال کردار ادا کرتا ہے؟ بھاشا سیکھنے میں کون سا کارک مہتوپورن ہے؟ تو وراثت اور سماجی ماحول، یعنی کہ ونشانوکرم اور واتاورن۔ اب یہ بتائیے کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ D = heredity into environment۔ یہ میرے خیال سے ووڈورتھ نے کہا تھا کہ وکاس جو ہے وہ ونشانوکرم اور واتاورن کی انتکریا کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وراثت اور سماجی ماحول زبان سیکھنے میں سب سے فعال کردار ادا کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ابھی میں نے مثال دے کے یہ سمجھایا تھا، اس میں صنعت تلمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، نمرود کا ذکر ہو رہا ہے، آگ جلائی گئی تھی اس کی بات آ رہی ہے، تو اس میں تلمی ہو گئی۔ افسانہ لاجونتی کے تخلیق کار کون ہے؟ بیدی کا یہ افسانہ ہے لاجونتی۔ اپنے دکھ مجھے دے دو، گرم کوٹ، بھولا، تلا دان، یہ سب بیدی کے اہم افسانے ہیں۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ دیکھو، سب سے پہلے ولی دکنی، پھر میر تقی میر، اس کے بعد غالب، اور سب سے آخر میں اقبال آئیں گے۔ یہ زمانی ترتیب جو تیسرے والے آپشن میں دی گئی ہے صحیح ہے۔ اندر سبھا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ اندر سبھا اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ ہے۔ اردو کا جو پہلا باقاعدہ ڈرامہ ہے وہ اندر سبھا ہے، اور مسعود حسین رضوی ادیب کے مطابق اردو کا جو پہلا ڈرامہ ہے وہ رادھا کنہیا کا قصہ ہے جو واجد علی شاہ نے لکھا تھا۔ لیکن جب آپ کو باقاعدہ پوچھے کہ باقاعدہ طور پر اردو کا پہلا ڈرامہ کون ہے تو امانت لکھنوی کا اندر سبھا ہے۔ ہم اور تم کل صبح سیر کو چلیں گے، اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ تو ہم اور تم
یہ مبتدا ہے۔ کون سا جملہ درست ہے؟ دیکھو، تم بازار سے جاؤ سبزی لاؤ، یہ جو تیسرا والا سینٹنس ہے نا، تم بازار سے جاؤ سبزی لاؤ، یہ والا جملہ درست ہے۔ اردو کو سرکاری دفاتر کی زبان اردو کو کب مقرر کیا گیا؟ تو 1832 میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تھا۔ حالی نے غالب پہ کون سی کتاب لکھی؟ دیکھو، خطوط غالب، یہ تو خلیق انجم نے غالب کے خطوط کو مرتب کیا تھا، اور یا غالب شخص اور شاعر، یہ مجنوں گورکھپوری کی کتاب ہے۔ محاسن کلام غالب، یہ کتاب جو ہے عبد الرحمن بجنوری کی ہے۔ اب بچا یادگار غالب۔ یادگار غالب یہ حالی نے مرزا غالب کے اوپر کتاب لکھی، یعنی یہ غالب کی سوانح عمری ہے، مولانا حالی نے لکھی، اور اس میں حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ قواعد کی تدریس کے ذریعہ کس تعلیمی عمل کو فروغ دینا مقصود ہے؟ دیکھیے، آفیشیل آنسر کی میں اس کا جواب مضمون نگاری مانا تھا، لیکن میرے حساب سے اس کا جواب زبان کی صرفی و نحوی امور کی باقاعدہ تربیت دینا، یہ گرامر ٹیچنگ کا مقصد ہونا چاہیے، تو آپشن ڈی زیادہ مناسب ہے۔ اب دیکھیے، ایک غیر درسی اقتباس بھی پوچھتا ہے، 3 سے 4 نمبر، کبھی کبھی 5 نمبر بھی پوچھ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ 82 سے 85 تک کے جو سوال ہیں وہ غیر درسی اقتباس ہیں۔ اب یہ پیسج آپ کو پڑھنا ہے اور اس سے متعلق سوال کو آپ کو حل کرنا ہے۔ جیسے بدھ مت اور جین مت ہندوستان کی تہذیب میں کیا تھے؟ تہذیب کا تسلسل تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، برہمنی نظام کی رسم پرستی اور سخت گیری سے ہندوستانی سماج میں کس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی؟ بغاوت کی۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو بدھ مت نے ہندوستانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے؟ تو مروجہ اقتدار و روایت کو نئے پہلو اور نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کرایا۔ اس کے بعد حق کی جستجو اور انسانی مسرت کی تلاش میں کون سے 2 نظام ایک ہو گئے؟ تو ان میں سے کوئی نہیں، آپشن دوسرا والا درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، پھر سے لٹریچر کے سوال آ گئے۔ ترقی پسند تحریک کی جو پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی، اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ منشی پریم چند نے کی تھی، اور یہ 1 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں منعقد ہوئی تھی۔ اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی، اور ان کا ایک مشہور اسٹیٹمنٹ یہاں سے نکل کے آیا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔